Hello everyone, welcome back to Knock Knock AR Education. I hope all of you are doing good. So in our last lecture we have discussed about the field and we have started our new course, that is the comprehensive course on linear algebra. So if you remember, in our last class we have discussed about the definition of the field, how we will say that a given non-empty set is a field, and then I have discussed with you various fields which were like field of real number, field of complex number, field of rational number, and I have given you one homework also to check that Zn is a field or not. This was our homework. So all of you will be studying it in I think either in group theory, and if not in group theory, once you will go for the ring theory, then there you will study the concept of field, and then you will see the how we prove the Zn. And I think till now, as all of you are watching the lectures on group theory, you are aware about addition modulo n, multiplication modulo n. So all of you might be knowing about that. So the answer for this question is that Zn is a field if and only if what your n is a prime number. Okay, this is the condition, that if your n is a prime number, then Zn is going to be a field. If Zn is a field, then obviously n has to be a prime number. So sometimes instead of writing Zn, you might have always seen writing it at Zp. Why? Because for p we are just representing the prime number, so that is why Zp is a field whenever p is a prime number. Okay, so this is the answer of the question. So today the topic that we have to study is vector space. So till now we are on a very smooth speed because it is the basic of the linear algebra. If we miss it, then we will not understand the things which are going to be in the further lectures. That is why I am going a little bit slow. Once you have understood about this vector space, subspace, then we will try to cover lot many things in one lecture itself and with a little higher speed. Okay, so just before starting with this vector spaces, I just want to discuss few notations with you. So the notations that I want to discuss with you are these. As all of you can see on slide, R2 we represent it by xy, x comma y where belongs to R, and this is also called as two tuple. Okay, this is called as two tuple. So whenever we have a two tuple like this, in which that means a tuple in which we have two components and both the components are coming from a real number, then it will always be referred as what? It will always be referred as two tuple. In a similar way, if we talk about R3, seeing about this 3, we will just understand, okay, it is talking about the 3 tuple. It means a tuple which has 3 components and all the 3 components will be coming from where? From R. So we will represent this set R3 by what? X1, X2, X3, where all these X1, X2, X3 individual components are coming from where? From real number. That is why we have mentioned xi belong to R for all I equal to 1, 2, 3. It means whenever I'll keep I equals to 1, I'll get x1 belonging to R. Whenever I'll keep I equals to 2, I'll get x2 belonging to R. And whenever I'll keep I equals to 3, it will be x3 belonging to R. So all these x1, x2, x3 are belonging from where? From the set of real number. So if we generalize this like R2, R3, R4, R5, we'll go to Rn, and this will be called as n tuple. That means any tuple in this set will always be having n components, and all those n components will be coming from where? From the set of real number. Okay, so and similar procedure, if you keep I equals to 1, you will get x1 from R. If you keep I equals to 2, you will get x2 from R. I equals to n, it will be xn from R. So all these individual components are coming from the set of real number. Okay, so this is what I want to discuss with you because these notations are very common that we will be discussing. Okay, so but there is a specific thing about this Rn. Okay, and what is that specific thing? In books you might see that they are calling this Rn as what? As Euclidean space. Okay, this will be termed as Euclidean space. So whenever in books they are writing what they are writing about Euclidean space, or they are saying Rn, the both things are similar. Okay, if whenever they are writing Euclidean, you just understand, okay, they are talking about the Rn. That means a n tuple set where every tuple contains n components. Fine.
Let's go to few more notations. In a similar way, all of you might be knowing about set of complex number. Either we represent it by z, where z is a complex number, or there is another way to represent it. And what is that? A plus ib, that is a is the real part, b is the imaginary part, and both the real and imaginary part are coming from the real number. So either you represent it this way or you represent it this way, both are same. Similarly C2, अब now we have here 2, अब 2 आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 टपल होने वाला है हमारे पास, और 2 टपल होने वाला है तो मतलब 2 कंपोनेंट्स होंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे C है, जैसे हमने अभी R में पढ़ा, R3 था, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 टपल, R रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट आर कमिंग फ्रॉम R। इन अ सिमिलर वे C2 में 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 टपल, एंड C रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस 2 टपल के जो कंपोनेंट है वो आएंगे C से। तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 Z2, where Z1 and Z2 both are coming from the complex number only. Otherwise what you can write it down, आप इस Z1 Z2 को भी एक्सप्रेस कर दो। कैसे? A1 plus IB1, A2 plus IB2, and you know that both real and imaginary part comes from where? Comes from real number. So you can write it here A1 B1 A2 B2 belonging to real number. If you extend it, generalize it, you will get Cn. So it will be what? N tuple, and all the components of the tuple are coming from where? Complex number. So how you will write it? Z1, Z2, Zn, where each Zi is coming from the set of complex number. और इसको फिर अगर हम Z1 को कॉम्प्लेक्स नंबर को A1 प्लस IB1 में एक्सप्रेस करें, Z2 को A2 प्लस IB2 में एक्सप्रेस करें, जहाँ पे सारे के सारे रियल पार्ट AI एंड BI, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, आर कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। फाइन। तो इस जैसे हमने Rn को देखा, Rn के लिए एक स्पेसिफिक टर्म हमने बोला आइलिडियन स्पेस। इन अ सिमिलर वे हम Cn के लिए भी एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द यूनिटरी स्पेस। ओके, तो इन बुक्स इफ समवेयर इट इज मेंशन्ड लाइक यूनिटरी स्पेस, तो आपको परेशान नहीं होना है। यूनिटरी स्पेस का मतलब क्या है? सिंपल, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द सेट Cn। ओके, सो ये कुछ बेसिक नोटेशंस हैं बिफोर आई स्टार्ट विद दी आपका वेक्टर स्पेस। ठीक, उससे पहले एक चीज़ और हम देखेंगे, एंड व्हाट इज दैट थिंग, लेट मी जस्ट टेल यू। ओके, जस्ट देयर इज सम टेक्निकल इशू, जस्ट वेट फॉर 1 minute. Okay, I think it's fine now. Fine. So what I was saying, that before starting with the vector spaces, we have to discuss few more things. I think आपको पता होगा, जैसे R2 के अगर हम कोई भी 2 मेंबर्स लेंगे तो वो कैसे होंगे? 2 टपल टाइप के हमको दिखेंगे, यानी x, y, एंड देन सपोज वी हैव x1 y1। तो आपने एक वर्ड का सुना होगा, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन। ठीक है, कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन। तो दीज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू बाइनरी ऑपरेशंस, कि अगर हमें इन 2 मेंबर्स को ऐड करना है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम कॉम्पोनेंट वाइज कहते हैं, बिकॉज ये टपल का पहला कॉम्पोनेंट है, इस टपल का ये पहला कॉम्पोनेंट है। सो वी ऐड फर्स्ट कॉम्पोनेंट विद द फर्स्ट कॉम्पोनेंट, देन व्हाट विल हैपन? वी विल ऐड द सेकेंड कॉम्पोनेंट विद द सेकेंड कॉम्पोनेंट। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? x प्लस x1 y प्लस y1। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन और यूजुअल एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि हम स्टैंडर्ड ऐसे ही फॉलो करते हैं। अगर आपको सपोज कोई स्केलर है आपके पास, उसको आपको किसी टपल से मल्टीप्लाई करना है, व्हाट यू विल बी डूइंग? यू विल बी मल्टीप्लाइंग ईच कॉम्पोनेंट बाय दिस c। तो यू विल बी डूइंग cx देन cy। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें, ऐसे ये Rn पे भी लग जाएंगी, जनरलाइज करोगे आप। ठीक है, क्या करना है? सपोज आपके पास ऐसा कुछ है x1 y1 z1, देन यू हैव x2 y2 z2। तो अगर इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है, तो सेम चीज़ कंपोनेंट वाइज एडिशन चलेगा हमारे पास। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड के साथ, एंड थर्ड कंपोनेंट थर्ड के साथ। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग? x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आप जान लो तो ठीक रहेगा। फाइन। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। सो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास ये है। क्या कहती है ये डेफिनेशन? कि लेट वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट। कुछ वर्ड्स पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे। पहला है नॉन एम्प्टी।
ठीक है, आप कभी भी अगर आपको किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस देखना है, आगे हम सब स्पेस देखेंगे, सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको उसे चेक करना है वेदर दिस इज एम्प्टी और नॉट, क्योंकि अगर वो एम्प्टी होगा तो वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, कभी भी सब स्पेस नहीं बनेगा। फिलहाल हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द सेट हैज टू बी नॉन एम्प्टी, रीजन बीइंग वी हैव टू गो फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन, बट आपको सबसे पहले सेट को क्या चेक करना है कि वो सेट हमारे पास कैसा होना चाहिए, ऑलवेज नॉन एम्प्टी। उस नॉन एम्प्टी सेट एक तो चाहिए, दूसरा हमें एक फील्ड चाहिए और हमें बाइनरी ऑपरेशंस चाहिए, और कितने बाइनरी ऑपरेशन, 2, ठीक है। तो कितनी चीज़ें नीडेड है हमारे पास, 4 चीज़ें नीडेड है, और वो क्या है, एक तो एक नॉन एम्प्टी सेट, दूसरा एक फील्ड, और फिर 2 बाइनरी ऑपरेशन। जब इतनी चीज़ें हैं तब हम उस नॉन एम्प्टी सेट V को बोलेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इफ फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो हम जिनके रिस्पेक्ट में हमने लिखा है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, बट ये बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन में बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, जैसा बाइनरी ऑपरेशन दिया है आपको क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग आप काम करोगे, ठीक है। नाउ पहली प्रॉपर्टी जो है वो वेक्टर एडिशन की है। वेक्टर एडिशन क्यों बोला है, क्योंकि जो V है उसको हम वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं, तो उसके मेंबर्स को हम वेक्टर्स बोल रहे हैं। अब सबसे पहला डाउट मैं यहीं पे क्लियर करूँगी। अब अगर वेक्टर स्पेस के मेंबर्स को हम वेक्टर्स बोल रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, अच्छा ये तो वो वाले वेक्टर्स हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है आपकी डेफिनेशन, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये सिर्फ एक नाम हमने दिया है, क्या कि वेक्टर स्पेस, जो भी सेट वेक्टर स्पेस बनेगा उसके मेंबर्स को वी आर कॉलिंग वेक्टर्स, दे नीड नॉट टू बी एक्चुअली वेक्टर्स, जो कि हम ऐसे ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। सो उस कंफ्यूजन से दूर रहना। अब वेक्टर एडिशन बोला है क्योंकि वेक्टर, हम मेंबर्स ऑफ वेक्टर स्पेस को क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं, और उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर V वेक्टर स्पेस बनना चाहता है तो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर की। क्लोजर क्या कहता है, कोई भी 2 आप वेक्टर उठाओ इस नॉन एम्प्टी सेट V के, उनको आप ऐड करो, वो एडिशन या वो सम जो है दैट शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेट V, यानी कि जो सम है वो V के अंदर ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो V वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। दूसरी है एसोसिएटिव, ठीक है, और आई थिंक ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जब हमने फील्ड समझा था, ठीक है। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के लिए यहाँ आप देखो मैंने 0 वेक्टर लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ 0 वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि अब ये 0 वेक्टर आपके लिए सिर्फ 0 नहीं है, जैसे हम फील्ड में पढ़ रहे थे, ये 0 वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस 0 वेक्टर इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ये V फंक्शंस का सेट होगा तो ये 0 फंक्शन बन जाएगा, अगर ये V मेट्राइसिस का सेट होगा तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर इज 0 वेक्टर। तो हर एक मेंबर के लिए एक ऐसा यूनिक 0 वेक्टर होगा सेट V के अंदर, जिसमें उस 0 वेक्टर को जब आप U में ऐड करोगे तो वो आपको हमेशा U ही दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन जब हम करेंगे वी विल सी दिस। देन इनवर्स बोला है। इनवर्स क्या है कि आप हर एक मेंबर में ऐसा क्या ऐड करो कि आपको क्या एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 वेक्टर मिल जाए। इन सब चीज़ों का मतलब पहले ही देख चुके फील्ड में, और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन होल्ड होनी चाहिए। अगर ये हो गई तो अभी भी हम नहीं बोलेंगे कि V हमारा वेक्टर स्पेस है। अब हम जाएंगे कहाँ पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मतलब हमारे पास क्या है, आपके पास कोई भी वेक्टर उठाओ वेक्टर स्पेस से और कोई भी स्केलर उठाओ, कल हमने देखा था ना फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्केलर्स, तो किसी भी स्केलर से अगर आप इस U वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे ये हमेशा V का मेंबर होना चाहिए। और अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि अल्फा U का क्या मतलब है। अब R2 जो है ये U वेक्टर को अगर मैं x, y मान लूँ तो ये अल्फा U वेक्टर ही तो है जहाँ अल्फा C है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं इसका मतलब क्या है, ठीक। सो ये आ गया हमारे पास। तो यही है, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होना चाहिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप ध्यान में रखना, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज़ आपको परेशान करती है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है,
वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाती हैं, बट जो प्रॉपर्टीज़ परेशान करती हैं वो यहाँ की होती हैं। पहला ये है कि कोई भी आप स्केलर लो फील्ड से और कोई भी दो वेक्टर लो नॉन एम्प्टी सेट V से, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए, अल्फा टाइम्स u प्लस वी मस्ट बी इक्वल टू अल्फा यू वेक्टर प्लस अल्फा वी वेक्टर। ठीक है, दूसरी है हमारे पास फॉर ऑल, अब दो स्केलर्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हम दो वेक्टर की बात कर रहे थे, दो वेक्टर के एडिशन पे हम स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू scalars for any two scalars and for any vector inside the non-empty set V. Alpha plus beta u vector करूँ, that should be equals to alpha u vector plus beta u vector। अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट टू टेल यू पीपल दैट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी आप वेक्टर स्पेस चेक करने जाओगे किसी नॉन एम्प्टी सेट को एंड ओवर एनी फील्ड, ये प्रॉपर्टी आप ज़रूर देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, बट ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी क्या है, अगेन दो स्केलर्स की बात करी लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन पे, कैसे कि फॉर ऑल अल्फा बीटा इन फील्ड एफ एंड फॉर ऑल यू वेक्टर इनसाइड द नॉन एम्प्टी सेट वी, alpha beta u vector must be equal to alpha times beta u vector. This one is also very important. And last one, कल आपको एक चीज़ अगर याद हो, हमने फील्ड पढ़ा था तो हमने पहले देखा था कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी देखा, वहाँ हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हर एक मेंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम कि हमें वही एलिमेंट मिल जाए, वो 1 आया था, तो यही कह रहे हैं कि फील्ड में 1 तो होगा, तो प्रॉपर्टी ये ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए कि किसी भी मेंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही देगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी तो मैम हमेशा सेटिस्फाई होगी, इसमें ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, समटाइम्स इट फेल्स। और क्या होता है, हम बाकी प्रॉपर्टीज़ में लगे रहते हैं सर्च करने में, बट हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखते ही नहीं, और एक्चुअल में ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ही वो जो नॉन एम्प्टी सेट भी है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, तो इनको ज़रूर ध्यान में रखना। सबसे पहले इनको ही चेक कर लो, और वेक्टर एडिशन के लिए अगर देखोगे तो आप क्या चेक कर लेना, आइडेंटिटी, ये ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो अब अगर ये नॉन एम्प्टी सेट V ओवर द फील्ड F क्या करता है, इन गिवन कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास, टोटल 10 हो गई। ठीक है, इन गिवन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है, तो वी विल बी कॉलिंग दैट V इज़ अ वेक्टर स्पेस, V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल हुई, कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आप तुरंत बोल दोगे कि हमारे पास जो गिवन सेट V है वो क्या नहीं है, वो वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखना, उनमें से जिन प्रॉपर्टीज़ पे मैंने स्टार या एस्ट्रिक मार्क किया है उनको तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि वही होंगी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी उस नॉन एम्प्टी सेट V पे, और वही उसको क्या बनाएंगी, एक वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं समझने के लिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी विल बी सीइंग इज, सपोज वी हैव V is equals to R and we have field of real number V. Yesterday we have seen that set of real number forms a field. Okay, and now usual binary operations हैं आपके पास, that is addition and multiplication. अभी मैंने थोड़ी देर, अब ये तो आपको पता ही है कि कैसे दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखो, इसको हमें चेक करना है कि whether this V forms a vector space over the field of real number or not. So yesterday if you remember हमने देखा था कि R प्लस जो है वेक्टर एडिशन यानी V प्लस जो है वो ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर आपके पास सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आपके पास एसोसिएटिव हो जाएगी। आइडेंटिटी आप देखो तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जीरो वेक्टर जो है वो ये प्रेजेंट है यहाँ पे। इन्वर्स भी अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट है, 1 का इन्वर्स -1 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है, कॉम्यूटेटिव तो है ही, कल देख लिया था। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट, अब अगर हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपको पता है कि अब यहाँ पे ना एक डिफरेंस मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर मैं ऐसा लिखती हूँ कि 1, ठीक है, अब ऐसे हम कुछ भी नहीं कह सकते,
ये हमारे पास स्केलर भी हो सकता है और ये वेक्टर भी हो सकता है। और वेक्टर का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, आप वो ज्योमेट्री वाला वेक्टर मत समझना। अगर ये स्केलर है इसका मतलब ये 1 कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, डिफरेंस हो दोनों में। और अगर ये हमारे पास वेक्टर है इसका मतलब क्या है, ये 1 कहाँ से आ रहा है, v से आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है, v का मतलब r से ही आ रहा है, बट दोनों r अलग हैं। दिस इज द सेट ऑफ वेक्टर्स एंड दिस इज द सेट ऑफ स्केलर्स। तो इसलिए कंफ्यूजन के लिए हम क्या लिख दे रहे हैं, 1 वेक्टर। एक्चुअली में दिस इज नॉट दैट वेक्टर, बट इसको हमने बोला है बिकॉज वी कॉल द मेंबर्स ऑफ द वेक्टर स्पेस एज वेक्टर्स। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब पता है हमें कि अगर सपोज हमारे पास 2 है, उसको मैं 3 में मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये कुछ तो बेसिक चीज़ें आपने बहुत पहले सीखी होंगी, वेक्टर कैलकुलस वगैरह पढ़ा होगा, वहाँ भी देखा होगा, उसका आइडिया लगा सकते हो। ठीक, तो आप देखोगे कि हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब सेटिस्फाई हो रही, क्योंकि रियल नंबर है, फील्ड भी रियल नंबर है, सब कुछ। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर स्पेस। ओके, और अब क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, तो आई विल नॉट राइट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज़ और दिखाएंगे कि सब सेटिस्फाई हो रही हैं, ऐसा हम नहीं करने वाले। ठीक है, बिकॉज द पेपर इज ऑब्जेक्टिव, सो वी आर गोइंग टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली। फाइन, यहीं पे देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, इफ वी टॉक अबाउट सी ओवर सी। ठीक है, सी ओवर सी में भी आप देखो, क्योंकि आपको पता है a प्लस आई भी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड तो आप ऐसे ही करोगे ना, सी रियल पार्ट को रियल के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। और अगर एल्फा टाइम्स a प्लस आई भी करते हो तो वो क्या बन जाएगा, एल्फा a प्लस आई टाइम्स एल्फा b। ठीक, और ये अब यहाँ पे देखना क्या है हमको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि a b यहाँ पे रियल नंबर से, c d रियल नंबर से, तो a प्लस सी भी कहाँ से आएगा, रियल से, b प्लस डी भी रियल से आएगा। सेम चीज़ यहाँ होगी। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेक्टर स्पेस। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, अगर मैं आपको r ओवर z दे देती हूँ, r ओवर z का मतलब है v ओवर f, ऐसे हम लिख रहे हैं, तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अब आप प्रॉपर्टीज चेक करने जाओगे, बहुत कुछ चेक करोगे, बट द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्यों, क्योंकि वेक्टर स्पेस होने से पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक फील्ड होनी चाहिए। बट येस्टरडे ओनली वी हैव सीन दैट z इज नॉट अ फील्ड, राइट, z इज नॉट अ फील्ड। अभी हमने देखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फेल हो रहा था, नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, केवल 1 और -1 का कर रहा था, वो प्रॉपर्टी फेल हो रही थी। ठीक है, सो दैट इज वाई z इज नॉट अ फील्ड। अगर फील्ड नहीं है तो हम वेक्टर स्पेस के बारे में बात ही क्यों करेंगे। ठीक, अब देखो, अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला QC ओवर, सपोज हमने यहाँ पे R लिख दिया। ठीक, तो अब क्या करोगे आप, वेक्टर एडिशन देखने जाओगे, तो √2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है QC से, इसको ऐसा लिख लेते हैं हम U वेक्टर। ठीक है, ये एंड हमारे पास V वेक्टर माइनस √2, वो भी QC से बिलोंग कर रहा है, मतलब V से बिलोंग कर रहे हैं ना ये लोग। ठीक है, वेक्टर स्पेस के, सॉरी, नॉन एम्प्टी सेट V जो है V ओवर F ऐसे, तो V जो है वो हमारा QC है, फील्ड जो है वो रियल नंबर की है। लेकिन जब आपने वेक्टर एडिशन किया U प्लस V, वो क्या आ गया, 0 वेक्टर, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू QC, तो क्लोजर फेल हो गया ना हमारे पास। देखो आप, क्लोजर फेल्स, एंड इफ क्लोजर फेल्स तो ऑब्वियसली मतलब वेक्टर एडिशन फेल हो गया भाई, बेसिकली क्लोजर का मतलब है। अब वेक्टर एडिशन फेल्स तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, QC इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आप देखोगे तो आपको याद रहेगा। अब एक जनरल चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिसको याद रखो, Fn ओवर F जो होता है आपके पास, दैट इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, कि आपके पास जो V अगर सेट है Fn और आपके पास जहाँ पे F क्या है, फील्ड है, तो दिस विल ऑलवेज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। V ओवर F की बात कर रहे हैं हम, यानी कि Fn ओवर F की। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि अब अगर आपके सामने कोई R ओवर R लिख दे, R2 ओवर R लिख दे, ऐसे ही करते करते वो क्या कर दे, Rn ओवर R लिख दे, या फिर वो C ओवर C लिख दे, C2 ओवर C लिख दे, आपको चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या बोल देना है कि ये हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे।
ऐसे क्यू के साथ आप बना सकते हो, क्यू ओवर क्यू, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और कुछ भी नहीं करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। आपको डायरेक्ट बस देखना है, एफ फील्ड है, एफ एन ओवर एफ जैसा अगर स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट बोल दो कि ये वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। बट इससे पहले वी विल डिस्कस फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, अभी कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी। सपोज मैंने आपको बोला आर ओवर सी है हमारे पास, ठीक है, यानी कि वी मैंने आपको दे दिया आर और फील्ड मैंने दे दी कॉम्प्लेक्स नंबर की। और अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। एंड आई थिंक ये बहुत बेसिक से एग्जांपल्स हैं, इनमें कुछ बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक एक प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फील्ड पढ़ने से हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है वो सारी प्रॉपर्टीज़ देख के कि सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो हम v प्लस वेक्टर एडिशन की क्योंकि बात करते हैं हम लोग, राइट, वी टॉक अबाउट वेक्टर एडिशन। तो उसमें तो हमको पता ही है ना कि r प्लस के रिस्पेक्ट में सब सेटिस्फाई होगा, क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा, इनवर्स भी होगा एंड कॉम्यूटेटिव भी होगा, दैट वी नो। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी कि सारे स्केलर्स जो फील्ड से आ रहे हो, फील्ड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हो, एंड वो सारे वेक्टर्स जो कहाँ से आ रहे हो, वी से आ रहे हो, मतलब वेक्टर स्पेस से आ रहे हो। एल्फा यू हमेशा कहाँ जाना चाहिए, वी में जाना चाहिए, मतलब आर में जाना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो कुछ भी हमारे पास हमारा फील्ड था, वेक्टर स्पेस था, हमने लिख लिया। अब एक बात सोचो, मैंने यू वेक्टर को क्या चूज कर लिया, 2 चूज कर लिया, ठीक है। और एल्फा क्योंकि फील्ड से आ रहा है तो उसको मैंने 1 प्लस आई लेट कर लिया। अब एल्फा यू वेक्टर निकालोगे तो 1 प्लस आई टाइम्स 2 निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2i। एल्फा यू कहाँ से आना चाहिए था, ये v से आया, ये फील्ड से आया। एल्फा यू कहाँ से आना चाहिए था, v से, बट क्या ये v से आ रहा है, v का मतलब r से आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये बेसिक प्रॉपर्टी फेल हो गई ना, आगे किसी और प्रॉपर्टी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी सी प्रॉपर्टी से ही काम हो गया, ये फेल हो गई। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि किसी भी स्केलर से किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टिंग जो है वो ऑलवेज कहाँ जाना चाहिए, वी में जाना चाहिए, सेट ऑफ वेक्टर्स में जाना चाहिए। बट यहाँ तो वो गया ही नहीं, क्योंकि 2 प्लस 2i इज नॉट अ रियल नंबर, it is a complex number, so obviously property fails of scalar multiplication, so this is not a vector space। अब वहीं पे अगर हम बात कर दें किसकी, c ओवर r की बात कर दें, मतलब अब हमने जो सेट लिया था वेक्टर्स का उसको हमने r ना लेके c कर लिया और हमने फील्ड ले ली रियल नंबर की, ठीक। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे c प्लस के रिस्पेक्ट में यानी वेक्टर एडिशन में तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई होंगी, वो हम कल देख चुके हैं। अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होने वाली है यहाँ पे, और वो कौन सी है कि फॉर ऑल एल्फा जो कहाँ से आए, फील्ड से, फील्ड कौन है, रियल नंबर है, एंड फॉर ऑल यू वेक्टर जो कहाँ से आए, वेक्टर वी सेट से यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से। एल्फा यू कहाँ से आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से आना चाहिए। अब ये तो क्लियर है ना भाई, किसी एक रियल नंबर का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो वो वी में ही तो जा रहा है। और उसके बाद एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज भी चेक करोगे, वो सब सेटिस्फाई होंगी। तो सी ओवर आर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर स्पेस। लेकिन वहीं पे अगर आप देखते हो क्या, आर ओवर सी वो नहीं बनेगा वेक्टर स्पेस, एंड रीजन बीइंग इज कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जा रहा है, ठीक। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ क्या, आर ओवर क्यू, आपको पता है क्यू फील्ड है, मतलब वी सेट हमने आर लिया, फील्ड हमने रैशनल नंबर की ली, तो आर प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप किसी भी स्केलर नंबर से रियल नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी रियल नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज सेटिस्फाई। सो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अब यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, Q ओवर R। तो कल देखा था Q फील्ड है तो Q प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वेक्टर एडिशन में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। लेकिन जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, अब आप देखो
हमने u वेक्टर को चूज कर लिया सपोज 2, जो कि रैशनल नंबर है, v से आ रहा है, एंड हमने अल्फा जो स्केलर है उसको माना √2, जो कि फील्ड से बिलोंग कर रहा है, जो कि रियल नंबर है। अल्फा u निकालोगे तो 2√2 आएगा ना, वो कहाँ v से बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर से, नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। इसलिए ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ज़रा सी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स की तरफ, जो कि अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स। इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये अब आगे हमारे पास बार बार यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो इट वुड बी ग्रेट फॉर यू इफ़ यू लर्न देम। दीज आर द स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेसेस दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू। पहला है हमारे पास V be the set of all functions, okay, from S to field F where S is a non-empty set। मतलब क्या है, V जो है वो हमारे पास सेट है, ये कैसा है, F मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस, जहाँ पे F from S to F है इज अ फंक्शन, और हमारे पास जो S है वो कैसा है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि वो, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं सेट ऑफ रियल नंबर दे दूँ आपको और फील्ड भी रियल नंबर दे दूँ, तो R2R में आप कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारे, fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, x क्यूब, x+1, x+3, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस, बहुत सारे डिस्कस कर सकते हो। तो उन सारे फंक्शंस को क्या करो, एक सेट के अंदर डाल दो। तो अभी उसी सेट की बात कर रहे हैं कि S कोई नॉन एम्प्टी सेट है, S से फील्ड F हमने ली है, उस पर फंक्शंस जितने भी बन सकते हैं उनको एक सेट के अंदर डाल दिया। अब उन पे हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। कैसा, दो फंक्शंस का सम इस तरीके की प्रॉपर्टी को रखेगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा। तो अब क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर आप बुक्स में देखोगे प्रॉपर प्रूफ करा रखा है, मैं भी जब बच्चों को कराती हूँ तो पूरा प्रूफ कराती हूँ, बट अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कल वाले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें देख ली कैसे प्रूव करनी है। अदरवाइज आप बुक देख सकते हो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू फॉलो अ बुक। माई नोट्स विल बी सफिशिएंट, बट मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि ऑलवेज फॉलो द नोट्स। वो आपके लिए एग्जाम में जाने से पहले देख सकते हो, बहुत डिटेल्ड नोट्स दूंगी मैं, दो I'll give you the complete notes, but always keep a habit of reading the books because this will help you in your higher studies। अगर आपने अभी से वो हैबिट डेवलप नहीं करी तो आगे प्रॉब्लम होगी, तो बुक ज़रूर पढ़ो, वहाँ पे आप देखोगे एक एक चीज़ पूरी लिखी हुई है, ठीक। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि हम इसे कैसे देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है, कौन, दिस V इज़ अ वेक्टर स्पेस, और कहाँ पे, उसी फील्ड F पे जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक। अब यहाँ देखो क्या होगा, आपको पता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन F है S2F और एक फंक्शन G है S2F, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर F प्लस G निकालोगे वो भी कहाँ से कहाँ होगा, S2F ही होगा ना, बेसिक सी प्रॉपर्टी। और कोई भी फंक्शन जो S2F से हो गया, इसका मतलब वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, हमारे पास V में। तो फॉर ऑल F, G विच बिलोंग्स टू V, F प्लस G भी कहाँ चला गया, V में। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे डोमेन देखना है कि अगर कोई भी फंक्शन S से फील्ड F पे डिफाइन हो गया तो वो सेट V के अंदर चला जाए। तो हमें ये देखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा, रियल एनालिसिस में वन वेरिएबल में होल्ड होती है। आइडेंटिटी की बात करें अगर हम, तो आपको पता है फॉर ऑल F फंक्शन जो S to F होंगे उसी में मैं ज़ीरो फंक्शन डिफाइन कर सकती हूँ S to F पे। कैसे, कि ज़ीरो ऑफ x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब क्या होगा, F प्लस ज़ीरो ऑफ x, आपको बहुत अच्छे से पता है बाइनरी ऑपरेशन ऐसा डिफाइन किया हुआ है ना हम लोग। तो ये f ऑफ x हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो अल्टीमेटली f ऑफ x ही तो हो गया, तो वही चीज़ मिल गई ना हमको। तो यहाँ पे अब आप देखो, मैंने जो ज़ीरो वेक्टर बोला था वो क्या बन गया, ज़ीरो फंक्शन बन गया। और अब देखो, अभी तक आपने वेक्टर्स जो वेक्टर कैलकुलस में ज्योमेट्री में पढ़ते थे वो देखे थे, यहाँ पे जो फंक्शन है वो भी वेक्टर है, नाम है इसका मतलब सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे एवरी फंक्शन इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एवरी फंक्शन इज अ वेक्टर, वाई, बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर का मतलब क्या है, ज़ीरो फंक्शन, ठीक है, ऐसा बन गया।
एक चीज़ बस समझो, ये 0 जो है ये फंक्शन है, इसका मतलब ये वेक्टर है, वेक्टर स्पेस का मेंबर है, बट ये मैपिंग है। तो 0 ऑफ x यानी ये 0 ये फील्ड से आ रहा है, ये एक स्केलर है, तो दोनों 0 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये भी बिलोंग कर गया। ऐसे ही आप देखोगे कि अगर f हमारे पास S2F में जा रहा है तो माइनस ऑफ f क्या होगा, वो भी S2F में ही जाएगा। और अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड करूँगी, ठीक है, तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x, देन दिस इज योर माइनस ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो दिस विल बी f ऑफ x माइनस f ऑफ x। अब ये कैसे आया, देखो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ही तो डिफाइन किया है, अल्फा f ऑफ x जो है वो अल्फा टाइम्स f ऑफ x बन जाएगा। तो बस माइनस f ऑफ x जो था वो माइनस f ऑफ x बन गया। ये क्या बन गया आपका, 0 ही तो बन गया, और 0 किसके बराबर है, 0 ऑफ x के, तो इन्वर्स भी है। ऐसे ही आप कॉम्यूटेटिविटी देख लेना। आप कॉम्यूटेटिविटी में एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको, बुक में आप पढ़ोगे बट फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। f प्लस जी ऑफ एक्स, आपने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लगाई, वो ये बन गई। अब बच्चे क्या करते हैं, बड़ी जल्दी इसको ऐसा लिख देते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब f S2F फंक्शन है तो आप देखो f ऑफ x लिखोगे तो ये x तो s से आ रहा है, लेकिन ये f ऑफ x फील्ड का मेंबर है, और कल ही तो पढ़ा है कि फील्ड के मेंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होती है, तो ये फील्ड के मेंबर है, इसलिए इनको हमने स्वैप कर दिया, और अब ये g प्लस एफ ऑफ x बन गया। आई होप अब समझ आ रहा हो आपको कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको एडिशन के रिस्पेक्ट में बता दिया है, बाकी चीज़ें आप बुक से देख लेना, बाकी ये देख लो कि दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक। दूसरा देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कि लेट V बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम S टू फील्ड F वेयर S इज योर I, J, where your I lies between 1 to m, j lies between 1 to n and m, n belongs to natural number। अभी थोड़ी देर के लिए ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट अब समझ आ जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो, अगर मैं आपसे कहूँ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो तो ठीक है आंसर दे देंगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो डेफिनेशन देंगे, इट्स अ array, rectangular arrangement, all that where members are arranged in rows, columns, but actual में आप वो जो definition दे रहे हो ना वो arrangement की है या representation की है कि हम एक matrix को कैसे represent करते हैं, but that is not the definition of a matrix। कैसे, suppose मैंने यहाँ पे एक matrix लिखी, आप सबको पता है ना ये 1-1 पोजीशन होती है, ये 1-2 पोजीशन होती है, ये 1-3 होगी, ठीक है, एंड दिस इज 1n पोजीशन। ऐसे ये 2-1 पोजीशन होगी, दिस इज 2-2, देन 2-3 एंड यहाँ पे फाइनली 2n। फिर देखो m नंबर ऑफ रोज अगर हैं तो ये mth रो होगा फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, इन अ सिमिलर वे mth रो nth कॉलम, ऐसा बनेगा। लेकिन जब आप मेंबर्स को देखोगे तो यहाँ देखोगे A11 लिखा होगा, A12 लिखा होगा, A13 लिखा होगा, A1n लिखा होगा, यहाँ A21 लिखा होगा, A22 लिखा होगा, A23 देन A2n, यहाँ देखो AM1 लिखा होगा, AM2, AM3, AMN, और आप कभी भी M2 की जगह M3 नहीं लिख दोगे कि AM2 को AM3 लिख दिया। आपको ऐसा नहीं लगता एक मैपिंग जैसी नज़र आ रही है कि जो 1,1 है उसको हमने A11 पे मैप कर दिया है, 1,2 जो है उसको हमने A12 पे मैप कर दिया है, 1,n जो है उसको हमने A1n पे मैप कर दिया है। सी सिमिलर वे 2,1 को हमने A21 पे मैप किया है, 2,2 को हमने A22 पे मैप किया है, कर दिया ना। तो डोंट यू सी दैट दिस इज अ काइंड ऑफ मैपिंग। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, f ऑफ 1,1 गोज टू A11, f ऑफ 2,1 गोज टू A21, लिख सकते हैं ना, f ऑफ m1 गोज टू व्हाट AM1। तो देखो फंक्शन ही तो नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ वाई अब अगर आप जैसे मैं मैट्रिक्स थ्योरी का कोर्स भी पढ़ाऊंगी तो आई विल टेल यू दैट मैट्रिक्स इज एक्चुअली अ फंक्शन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट S टू द फील्ड F, क्योंकि ये सारे जो A1 ये मैट्रिक्स ओवर द फील्ड F होगी ना, तो ये सारे मेंबर्स किसी फील्ड से आ रहे होंगे, तो ये एक फंक्शन ही है जहाँ पे I कॉमा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, I कॉमा J टाइप का जो मेंबर है वो AIJ पे मैप हो रहा है, और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, I कॉमा J में ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कितनी रो है, m है, तो इसीलिए हमने लिख दिया ये j किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को, कितने कॉलम्स है n, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। सी
अब आप शायद ये देखोगे तो आपको समझ आएगा। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एस टू फील्ड एफ, जहाँ पे एस आई कॉमा जे टाइप का एलिमेंट रख रहा है, जहाँ पे आई 1 to m है, j 1 to n है और m n नेचुरल्स है। तो चाहे हम ऐसा लिखें या फिर मैं ऐसा लिख दूँ, वी बी दी सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मेट्राइसेस ओवर द फील्ड f। आई होप अब आपको शायद समझ आ गया होगा इसका मतलब, ठीक है। एंड दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f इटसेल्फ, ठीक है। तो कैसे देखेंगे इसको? ऑब्वियसली m क्रॉस n की दो मैट्रिक्स हैं, उनको ऐड करेंगे तो m क्रॉस n की ही मैट्रिक्स आएगी। और क्योंकि हम अगर a मैट्रिक्स लेते, सपोज aij जो बिलोंग कर रही है कहाँ से, और देखोगे तो ये सब केस है। देखो जरा पीछे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था, यहाँ पे S को हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर हम पहले प्रूफ कर चुके हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि वहाँ पे जनरल S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था, यहाँ पे पर्टिकुलर नॉन एम्प्टी सेट लिया, ठीक। एक तो आप इसको फंक्शन की ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई उसकी डेफिनेशन से कर सकते हो, दूसरा मैट्रिक्स की हेल्प से कर सकते हो कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब aij कहाँ से आ रहा होगा, फील्ड से आ रहा होगा, ठीक है। B हमने मान ली एक दूसरी मैट्रिक्स, सपोज वो क्या है Bij, ठीक है, दैट इज़ योर Bij m क्रॉस n, वो बिलोंग कर रही B से। तो Bij सारे कहाँ से आ रहे होंगे, फील्ड से आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स ओवर द फील्ड f है ना, तो ये फील्ड से आ रहे होंगे फॉर ऑल i कॉमा j। तो एक बात बताओ, जब इन दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, दो मैट्रिक्स को ऐड करना आपको आता है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट ऐड होंगे, aij फील्ड से आ रहा है, Bij फील्ड से आ रहा है, तो उनका सम कहाँ से आएगा, वो भी फील्ड से आएगा। और अगर फील्ड से आ गया सारे के सारे मेंबर्स a प्लस बी के, तो वो a प्लस बी भी मैट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, b में चली जाएगी। तो अल्टीमेटली इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू मैट्राइसेस of order m cross n is always going to be a matrix of order m cross n, ओके। सो वैसा हो जाएगा। आइडेंटिटी देखोगे, मैट्रिक्स एडिशन को ऑलवेज आपने देखा है एसोसिएटिव होता है, क्लास 9th-10th में आपने मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ समझ लिया होगा, नहीं समझा है तो अभी हम करेंगे मैट्रिक्स थ्योरी, वहाँ समझ जाओगे, ठीक। अगर आप जीरो वेक्टर, अब देखो एक चीज़ और, अब यहाँ पे जो मैट्राइसेस है वो वेक्टर बन चुकी है, देखो क्योंकि V वेक्टर स्पेस है तो उसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब वेक्टर्स बोलते हैं तो मैट्रिक्स क्या वेक्टर बन चुकी है। अब जीरो वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे जीरो वेक्टर नल मैट्रिक्स होगी। और जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, जीरो वेक्टर का मतलब है हमारे पास क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो वेक्टर मतलब जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स, ठीक। ए अगर है यहाँ पे तो माइनस ए भी होगी, तो इन्वर्स भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, ऐसे सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। इसका मतलब दिस इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इनको याद रखना है क्योंकि आगे इनको मैं यूज़ करूँगी सब स्पेसेस में। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेसेस हैं विच आई एम डिस्कसिंग विद यू, फाइन। लेट्स कम टू अनदर standard example for the vector space, and that is this. Let V be the set of all polynomials from f to f, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे पास a0 a1x plus a2x square, then we have up to an x to the power n और a, जहाँ पे ai सारे फील्ड से आ रहे हैं फॉर ऑल i। यानी आप दुनिया में आपके पास जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, जो भी पॉलिनोमियल्स अवेलेबल हैं, सबको एक सेट में डाल दो, उस सेट की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड f। कैसे, अब देखो सम करने से ही आपको समझ आ जाएगा। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया a0 प्लस a1x, और यहाँ पे एक चीज़ और ख़ास बात कि हमें डिग्री का पता नहीं, यानी आप चाहो तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल रखो, आप चाहे तो 2 डिग्री का रखो, आप चाहो तो 1000 डिग्री वाला पॉलिनोमियल रखो। जितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स और जो भी पॉलिनोमियल्स हैं सब अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। ये बिलोंग करेगा कहाँ पे, V में, तो ये सारे के सारे ai जो हैं वो फील्ड से आ रहे होंगे, ठीक। अब q ऑफ x ले लिया मैंने, सपोज b0 प्लस b1x अप टू वॉट bnx टू द पावर n, और आगे ऐसे ही चला गया क्योंकि हमें डिग्री नहीं पता। अब क्योंकि ये V से आ रहा है तो bi फील्ड से होंगे। तो अगर आप p ऑफ x प्लस q ऑफ x निकालोगे तो आप सबको पता है ना, x का कोफिशिएंट x के साथ ऐड होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में ऐड होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1x, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, an प्लस bnx टू द पावर n। अब देखो सिंस ai कहाँ से आ रहा है, फील्ड से,
bi कहाँ से आ रहा है, फील्ड से, और फील्ड की प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो मेंबर उठाओगे तो उनका सम कहाँ से आएगा, ऑलवेज फील्ड से। अब जब ये सब फील्ड से आ गए, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो हमारे पास p प्लस क्यू है वो बिलोंग कर गया कहाँ पे, v में। तो देखो वेक्टर एडिशन तो हमने ऐसे ही प्रूफ कर दिया। ठीक, एक चीज़ और देखो, अब यहाँ अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करोगे तो वो जीरो वेक्टर होगा, और वो जीरो वेक्टर कौन होगा, जीरो पॉलिनोमियल, यानी 0 + 0x + 0x स्क्वायर, लाइक दिस इज गोइंग टू बी जीरो वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन देखोगे, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। अब यहीं पे एक चीज़ और देख लो, सपोज अल्फा p ऑफ x पूछते हो तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा a0 अल्फा a1 x अप टू व्हाट, दिस इज योर अल्फा an x टू द पावर n, और ये आगे चला जाएगा। अब क्योंकि a0 a1 a2 अप टू an एंड सो ऑन सारे कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं, अल्फा फील्ड से आ रहा है। तो फील्ड में हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखी थी ना क्लोजर, वहाँ पे कि कोई भी फील्ड के दो मेंबर्स को मल्टीप्लाई करो ऑलवेज फील्ड से आएगा। मतलब अल्फा ai कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है फॉर ऑल i, तो ये अल्फा p ऑफ x कहाँ चला जाएगा, v में चला जाएगा, बन जाएगा वेक्टर स्पेस। होप आप कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये क्या कह रहा है, v बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ फिक्स्ड डिग्री n। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि a0 + a1x अप टू व्हाट, ak x टू द पावर k। ठीक है, जहाँ पे k = n इज फिक्स्ड। ठीक है, अब ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा ये हम समझते हैं। सपोज मैं ना n की वैल्यू 2 ले रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा, फिक्स्ड डिग्री n का मतलब इस v के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे सबकी डिग्री क्या होगी, k होगी या n होगी। अब मैंने बोला कि आपको समझाने के लिए कि मैं n को 2 ले लेती हूँ, मतलब इस v के अंदर जितने भी क्या होंगे हमारे पास, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उन सब की डिग्री क्या होने वाली है हमारे पास, 2 होने वाली। सारे 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स ही यहाँ पर होंगे हमारे पास। तो सपोज मैंने क्या किया, p चूज कर लिया, p ऑफ x, क्या माना मैंने उसको, x²। ये आपको दिख रहा है, इसकी डिग्री 2 है, मतलब ये v में बिलोंग कर रहा है। एक q पॉलिनोमियल माना मैंने, सपोज x + x², या एक काम करते हैं x - x² मानते हैं इसको। ठीक है, अब ये भी v में बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है। लेकिन जैसे ही हम p + q निकालने गए तो अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये तो x बचा, एंड डिग्री ऑफ p + q इज 1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2, और v के अंदर तो वही पॉलिनोमियल जाएंगे जिनकी डिग्री 2 है। तो आप देखो वेक्टर एडिशन जो है वो फेल हो गया ना हमारे पास। अब वेक्टर एडिशन अगर फेल हो गया किसी एक n के लिए, तो बस क्या पता चला हमें यहाँ से कि अगर हमारे पास कोई हमें एक सेट देता है और बोलता है इसमें फिक्स्ड डिग्री के पॉलिनोमियल्स बैठे, तो वो कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, दे विल नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास कि लेट v बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। ठीक है, मतलब क्या बोला है, अब ऐसा a0 + a1x, ठीक है, देन यहाँ पे ak x टू द पावर k, और बोला है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। n हमारे पास कोई नंबर है और या तो उसके बराबर है पॉलिनोमियल की डिग्री या उससे बड़ी है, तो हम कह देंगे क्या कि हमारे पास जो v है वो ऐसे पॉलिनोमियल्स का सेट है। आपको समझाने के लिए सपोज मैं n को 2 ले लेती हूँ, इसका मतलब इसके अंदर ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या तो क्या होगी 2 होगी और या तो ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक, ऐसे पॉलिनोमियल्स, मतलब इसके अंदर पॉलिनोमियल बैठे होंगे डिग्री 2k 3k 4k 5k अप टू सो ऑन। तो मैंने क्या किया, मैंने p एक लिया विच इज x², सपोज 2x²। अब इसकी क्योंकि डिग्री 2 है तो ये बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। देन एक q ले लिया मैंने विच इज़ व्हाट, विच इज़ सपोज हमारे पास है ये 3x - 2x², ये भी v में बिलोंग करेगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। लेकिन जैसे ही मैंने इनका सम किया तो आप देखो 3x आ रहा है, एंड डिग्री ऑफ p + q इज नीदर ग्रेटर देन 2 नॉर इक्वल्स टू 2, इट इज इक्वल्स टू 1। तो वेक्टर एडिशन वापस से फेल हो गया, इसका मतलब दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, कुछ के लिए होल्ड भी होगा। देखो आप, अगर जैसे मैंने ये ले लिया
और एक यहीं पे मैंने क्या लिया होता r, इसको -2x² प्लस एक्स क्यूब लेते, क्योंकि डिग्री इसकी 3 है, ग्रेटर देन 2 तो v में बिलोंग करेगा। अब अगर आप p प्लस आर निकालते हो तो वो एक्स क्यूब है, डिग्री ग्रेटर देन 2 है अभी भी, तो बिलोंग कर जाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है वेक्टर एडिशन के लिए, फॉर ऑल यू वी इन वी यू प्लस वी मस्ट बी इन वी, तो फॉर ऑल के लिए तो नहीं होल्ड हुआ ना, तो ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो अब तक आप देखो हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड कितने सेट पढ़े, एक तो पढ़ा सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स, चाहे कितनी भी डिग्री हो सबको रख दो, वो वेक्टर स्पेस बन गया। फिर हमने फिक्स्ड डिग्री n के पॉलिनोमियल्स का एक सेट देखा, वो वेक्टर स्पेस नहीं बना। ऐसे ही हमने डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n का देखा, वो भी हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर स्पेस नहीं बना। अब एक काम करते हैं, एक और सेट देख लेते हैं, और वो क्या होगा, वी बी दी सेट ऑफ, इसको आप नंबर दे सकते हो 6, ठीक है, वी बी दी सेट ऑफ all polynomials of degree less than or equals to n, ठीक है। मतलब क्या है कि v जो है वो अभी हमारे पास a0 प्लस a1x अप टू a k x टू द पावर k है, जहाँ पे k आपका लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। तो मतलब क्या है आपको समझाने के लिए कि सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू को 3 ले लिया, तो मतलब वो सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी डिग्री या तो क्या हो 3 हो या तो लेस देन 3 हो। तो ऐसा होगा तो वो पॉलिनोमियल कहाँ चला जाएगा, v के अंदर, ठीक। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री इधर लेस देन 3 है, उनको ऐड करोगे तो 2 ही तो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, ठीक है। चाहे डिग्री इक्वल टू 3 हो चाहे लेस देन 3 हो, कैसे भी 2 पॉलिनोमियल लो, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो डिग्री 3 आएगी या लेस देन 3 आएगी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो ही जाएगा ना, ठीक है। चाहे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो, तो बस ये याद रखना है कि दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास वो सारे पॉलिनोमियल्स का सेट जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे, और सारे पॉलिनोमियल्स का कोई भी सेट बना दो दैट विल आल्सो फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था जो आपको याद रखना है। अब यहीं पे देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम डिग्री जो है वो n हो, कम से कम का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n डिग्री, उसको हम एटलीस्ट n बोलेंगे। तो वो तो हम पीछे ही देख चुके हैं कि हमारे पास क्या होगा, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। एटमोस्ट n बोल सकते हैं, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो मतलब लेस देन इक्वल टू n, मैक्सिमम n हो सकती, तो एटमोस्ट n वाला तो फॉर्म करेगा ही, अभी तो हमने देखा, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स थे जिनको आप हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे हम बेसिस पढ़ेंगे, होमोजीनियस पढ़ेंगे, सब स्पेसेस पढ़ेंगे, मतलब होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन वाला सेट देखेंगे, तो ये सब हम वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, जहाँ पे ये मैंने कुछ आपके लिए लिख रखा है, ठीक है। पहले आप देख लो स्लाइड को, क्या है, v आपको r2 बोला है, और r2 पहला ही स्लाइड मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे मैंने आपको r2 के बारे में सब कुछ समझा दिया, और बाइनरी ऑपरेशन इन्होंने मतलब डिफाइन किए हैं, और कई क्वेश्चन मतलब मैंने पार्ट लिखे हैं यहाँ पे, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, और बोला गया है कि हमारे पास ये कौन सा जो A B C D E ऑप्शन में कौन से ऑप्शंस जो हैं वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे। अब क्या है, मैं पहला पार्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये B C और ये जो D और E है, इनमें से कौन से बाइनरी ऑपरेशंस पे ये जो गिवन सेट V R2 है ओवर द फील्ड R वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस नोट डाउन करने के लिए आप पॉज कर सकते हो। मैं फर्स्ट पार्ट देख रही हूँ, ए वाला पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। V हमें क्या दिया है R2, फील्ड हमें क्या दिया है R, ठीक है। एंड देन हमको बोला है कि x, y को अगर आप ऐड करोगे x1 y1 के साथ तो वो क्या बनेगा, x प्लस x1 y प्लस y1, मतलब ये तो यूजुअल वाला दे दिया है, यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं। C के साथ वाले में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, कि जब भी स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो केवल पहले कंपोनेंट में होगा, दूसरे में नहीं होगा, ठीक। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ एग्जाम में कैसे काम करना है। अब क्योंकि v प्लस के रिस्पेक्ट में आप देखते हो, यानी R2 प्लस के रिस्पेक्ट में, तो आपको एक चीज़ तो पता है कि R2 ओवर R जो है
वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, लेकिन कहाँ पे, जब एडिशन वाला ये हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ बन जाए। इस वाले में तो ये वेक्टर स्पेस होल्ड करता है ना, मतलब वेक्टर स्पेस बनता है, तो मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अननेसेसरीली उसको चेक करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि जब R2/R यूजुअल बाइनरी ऑपरेशंस पे क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो सब कुछ होल्ड हो रहा होगा, वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एक्चुअल में। ठीक, अब बेसिक चीज़ों पे आते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही मतलब हमको चेक करना है, क्योंकि उसी में कुछ अलग हमको दिया है, ये यूजुअल नहीं है। यूजुअल होता तो C × Y हो जाता, बट ऐसा है नहीं। अब क्या किया, एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि जो बेसिक सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है कि किसी भी स्केलर को U वेक्टर में मल्टीप्लाई करो, दैट शुड गो टू V ओनली। तो ये तो V से ही बिलोंग कर रहा है, मतलब उस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको लास्ट में कुछ 3 प्रॉपर्टी में स्टार मार्क कराया था, और मैंने बोला था वैसे आपको नहीं दिखेगा, बट वही आपको प्रॉब्लम में लाएंगे। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं हम लोग कैसे। एक तो जनरल तरीके से कर सकते हो आप। ठीक, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बोली थी, फॉर ऑल K1, K2 अल्फा जो भी ले लो, K1 K2 जो कहाँ से आ रहे हो, फील्ड से आ रहे हो। ठीक है, बिलोंग टू फील्ड है, एंड फॉर ऑल U जो R2 से आ रहे हो। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, K1 + K2 U वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू K1 U वेक्टर प्लस K2 U वेक्टर। ठीक, ओके। अब हम LHS ले लेते हैं जरा, क्या है वो, K1 + K2 U वेक्टर। अब U वेक्टर भी हमने कैसा ले लिया है, सपोज मैंने इसको x, y मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं सारी चीज़ें। दिस इज K1 + K2 x, y। क्या बनेगा ये हमारे पास, जो भी स्केलर है वो पहले ही कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब K1 + K2 x, एंड ये रहा कॉमा y, दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है हमारे पास, K1 U वेक्टर प्लस K2 U वेक्टर। फाइन, अब इसके साथ काम करते हैं। तो ये क्या है, K1 x, y प्लस K2 x, y। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, क्योंकि पहले ही कंपोनेंट में था तो K1 x, y हो गया, यहाँ पे K2 x, y हो गया। अब एडिशन में तो वही है, पहला कंपोनेंट पहले से, दूसरा दूसरे से। देखो आप, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, तो लिख दो K1 x प्लस K2 x, एंड यहाँ पे बस ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, इफ़ यू विल ऐड देम इट विल गिव यू 2y, है ना। ये आपको क्या नहीं दे रहा है, ये आपको y नहीं दे रहा है, 2y। और देखो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो जो पहला मैंने A आपको दिया है दैट इज फॉल्स, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस अंडर दीज बाइनरी ऑपरेशंस। इस तरीके से आपको ये B, C, D और E मैंने दिया है, आप ये देख सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैसे मैंने जनरल सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप अगर जनरल ना भी सॉल्व करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आपने K1 को ले लिया 1, या सपोज 2 ले लो। ठीक है, K2 को ले लिया आपने -3। अब LHS पे चले जाओ आप, और U को ले लो कुछ आप, सपोज 1, 3। ठीक है, कुछ भी ले लो, K1 + K2, ओके, K1 + K2 U वेक्टर। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये -1 बन जाएगा यहाँ पे 1, 3। अब क्योंकि पहले ही कंपोनेंट में होना है तो -1, 3 हो गया। RHS पे चले जाओ, दैट इज K1 U वेक्टर प्लस K2 U वेक्टर। तो K1 क्या आपके पास 2 टाइम्स, दिस इज योर 1, 3, एंड देन दिस इज -3 टाइम्स 1, 3। तो ये क्या बनेगा 2, 3, क्योंकि पहले ही कंपोनेंट में होना है, -3, 3। अब देखो यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे क्या, किसके साथ, 2 के साथ -3 को, एंड दिस इज 3 + 3, क्या बन गया ये -1, 6। तो मैच तो नहीं किया ना। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन डू। सो दिस V over the field F does not form a vector space over given binary operations. ठीक है, so now the homework part is you will give me the answer in the comment box for B, C, D and E whether they form vector space or not. ठीक है, अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे सब स्पेसेस। सब स्पेस में बहुत कुछ है करने को, एंड टुमारो ओनली विल फिनिश विद द सब स्पेस। भले ही थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो सब स्पेस है उसको एक लेक्चर में ही फिनिश कर दूँ। ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने डिटेल में हर एक चीज़ नहीं लिखी है, प्रूफ नहीं करी है,
यू विल रीड द बुक, यू विल गेट एवरीथिंग। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। सो इफ़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, ईदर यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, जिसका सोल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि या तो कॉमेंट बॉक्स में आप अपना जो क्वेश्चन है उसे पोस्ट कर दो, या फिर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड होप आपको ये लेक्चर्स जो है वो समझ आ रहे होंगे। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। थैंक यू सो मच।